Good morning dear students. Welcome back to the class. We are studying the lesson whole numbers. In the whole numbers, in the previous lectures, what we have studied? We have studied about the addition and the subtraction and all the properties of addition and the subtraction. Now we are moving further with the multiplication. You know what is multiplication? आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन पता है क्या होता है? हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लास्ट क्लास में भी पढ़ा है. जस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 6 into 3. 6 into 3 is equals to 18. What is 6 into 3 is equals to 18. Then what is multiplication? Multiplication is repetitive addition. Multiplication means multiplication is a repetitive addition. What is it means? That means if you add 6 3 times, if you add 6 3 times, your answer will be 18. 6 into 3 को हम लिख सकते हैं कि 6 को हमने 3 टाइम्स अगर ऐड किया तो जो आंसर आएगा वही 6 into 3 का आंसर आएगा. दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेटिव एडिशन. ओके, नाउ वी हैव टू studied about the properties of multiplication. What are the properties of multiplication? But before that we have to just like addition. Addition में हम लोगों ने क्या देखा था? Addition में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे addends होते हैं, है ना, जिनका हम लोग ऐड करते हैं, जिन होल नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं उन्हें हम addends बोलते हैं. In the subtraction, in subtraction what we have? In subtraction we have minuend, subtrahend and the difference. And now in the multiplication में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में कितनी टर्म्स होगी? मल्टीप्लिकेशन में भी 2 टर्म्स होगी. मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे 6 and 3. अभी ये दिया था ना, 6 into 3. 6 into 3 is equals to 18. इसमें जो 6 होता है इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट. 6 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट. Okay, 6 is a multiplicand and this 3 is a multiplier. 6 is a multiplicand and 3 is a multiplier. Okay, and your answer is product. If 6 into 3 is equals to 18, then this 18 is your product. Okay, now what do we understand from these? एडिशन में जो हमारी टर्म्स होती है वो होती है एडेंस. सब्ट्रैक्शन में क्या होती है? माइनूएंड, सब्ट्रैंड एंड डिफरेंस. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड द प्रोडक्ट. ओके, दिस इज मल्टीप्लिकेंट. आई विल राइट इट हियर. दिस इज मल्टीप्लिकेंट. ओके, दिस इज मल्टीप्लिकेंट. ओके, now we are going for the properties of multiplication. आपको याद है हम लोगों ने एडिशन में कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? सेम प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे चेक करनी है. अगर प्रॉपर्टीज फॉलो होती है दैट मीन्स हम क्या लिखते हैं उसको? द प्रॉपर्टी फॉलोज और द प्रॉपर्टी होल्ड्स. ओके, नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, व्हाट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या पता है हमें प्रॉपर्टी के बारे में? इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या याद है? रिकॉल करने की कोशिश करो. यस, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? एडिशन के टाइम पे क्या बोले थे हम लोगों ने? इफ वी ऐड टू होल नंबर्स, इफ योर आंसर इज whole number always, then the closure property hold. And in the subtraction the same way, if we subtract the two whole numbers, if our difference is a whole number, then closure property hold. In the same way, अगर हम किसी दो whole numbers का multiplication कर रहे हैं, whole number into again another whole number, if your answer is whole number always, if your answer is whole number always, that means closure property follows. That means closure property follows. Suppose one whole number क्या होते हैं? whole number 0 से onward जितने भी numbers होंगे वो सारे positive numbers, not negative numbers. Okay, suppose we are getting here 6, another whole number is 7. 6 is a whole number, 7 is a whole number, and our answer is a whole number. Okay, now if we are taking 6 here and here the 0, what is 6 into 0? 6 into 0 6 होता है या 0 होता है? बोलो 6 into 0 6 होता है या 0
0 होता है, करेक्ट. 6 into 0 is 0. 0 is also a whole number. That means closure property holds for the multiplication. That means closure property holds for the multiplication. Now what is the second property? Second property is commutative property. Second property is commutative property. Commutative property. What is commutative property? Commutative property is if you are multiplying two whole numbers, and if you interchange the positions of them, the answer will remain same. Then we say that the commutative property holds. अगर आप दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर आप उसका प्लेस या उसका ऑर्डर, आप कुछ भी बोलो, प्लेस या ऑर्डर आप चेंज करते हो, अगर आपका आंसर सेम रहता है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी. अगर हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर, आपको मल्टीप्लिकेंड की जगह मल्टीप्लायर लिखना है, मल्टीप्लायर की जगह मल्टीप्लिकेशन. सपोज आपने लिखा है 6 into 3, ठीक है. इफ 6 into 3 is equals to 3 into 6, if 6 into 3 is equals to 3 into 6, if in both the cases if your answer remains same symbolically also, then you say that your commutative property holds for the multiplication operation. Okay, 6 into 3 is 18 and 3 into 6 is also 18. That means in both the cases your answer remains same. In both the cases your answer remains same. That means commutative property follows for the multiplication operation. That means commutative property holds for the multiplication of the whole numbers. Okay, now the third property. What is third property? Third property is associative property. Third property is associative property. In associative property, if we change the grouping of the numbers and then also the answer remains same, then we say that the associative property holds. Suppose we have the three numbers 3, 2 and 4. If we have these three whole numbers 3, 2 and 4, if we have to perform the multiplication of all these whole numbers, now we are changing the grouping of this number. Okay, 3 into 2 into 4, that is 3 multiplied by 2 multiplied by 4. And in the second case, in this case we are grouped the first two whole numbers, and in the second case if we are grouping this last two whole number, that is 3 into 2 into 4, 3 into 2 into 4. What is 3 into 2? First we have to solve the bracket. First we have to solve the bracket. 3 into 2 6, 3 into 2 6 and into 4. What is 6 into 4? What is 6 into 4? 6 into 4 is equals to 24. In the next case 3 into 2 into 4. First solve the bracket. What is bracket? 2 into 4. What is 2 into 4? 2 into 4 is 8. 2 into 4 is 8. That is 3 into 8. That is 24. ओके, हमने इसमें क्या किया है, फर्स्ट केस में हमने स्टार्टिंग के दो होल नंबर्स का ग्रुपिंग किया है, एंड इन सेकेंड केस हमने क्या किया है, लास्ट टू होल नंबर्स का ग्रुपिंग किया है. बट दोनों ही केसेस में आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 24. दोनों भी केसेस है उसमें आपका आंसर 24 आ रहा है. दैट मीन्स अगर आप होल नंबर्स की ग्रुपिंग को चेंज करोगे तो आपका आंसर सेम रहता है. दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन. नाउ जैसे हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अभी आप मुझे ये बताओगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे किसी भी नॉन जीरो होल नंबर, वैसे तो नॉन जीरो ही होते हैं सारे, इफ वी मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो होल नंबर
then that answer must be that मतलब वो होल नंबर ही आपका फिर से आंसर आना चाहिए। इस तरीके से अगर आपको यहाँ कोई नंबर दिया गया है सपोज 4, तो आप इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स आपका आंसर अगेन 4 ही आना चाहिए। यहाँ जो नंबर आएगा वही आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, वही आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो आप मुझे बताओगे कि 4 इंटू यहाँ क्या लिखना है सो दैट आपका आंसर 4 ही आएगा। आपको ये बताना है कि यहाँ क्या होगा। ओके, तो 4 इंटू 1, यस, जब हम 4 इंटू 1 करते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है और इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या आप इसे बोल सकते हो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1? If we multiply any whole number, if we multiply any whole number with 1, our answer will remain same. That means अगर हम किसी भी whole number को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में अगेन वही whole number मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में देखे थे। किसके एग्जाम्पल में देखे थे? क्लोजर प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल में देखे थे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, इफ यू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विद 0, इफ यू मल्टीप्लाई एनी होल नंबर विद 0, व्हाट विल बी योर आंसर? अगर आप किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। सपोज 4 इंटू 0, व्हाट इज 4 इंटू 0? 4 इंटू 0 क्या होता है? 4 इंटू 0 इज 0। दैट मीन्स हमने अभी दो प्रॉपर्टीज देखी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। इफ यू मल्टीप्लाई एनी होल नंबर विथ 1, our answer will that whole number again, and if we multiply the whole number with 0, our answer is 0। that means दोनों केस में क्या है डिफरेंस देखो, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो होल नंबर आपको आंसर में मिलता है, और अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आपको आंसर में मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Now your next property is distributive property। What is distribution? Distribution सुना है आप लोगों ने, जो distribution का मतलब होता है वही सेम distributive property में भी होता है। What is distributive property? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है और उसे हमें 2 से ज़्यादा लोगों में या 2 लोगों में बांटनी होती है तो हम लोग उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज आपको ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, सपोज द मल्टीप्लिकेशन गिवन हियर इज 3 इंटू 2 प्लस 4। देन इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे बनाएंगे? तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे बनाते हैं? ये जो 3 है इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार 2 से होता है और इसी 3 का मल्टीप्लिकेशन वंस अगेन 4 के साथ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 विद दिस 2 एंड देन द 3 अगेन मल्टीप्लाइड विद दिस 4। दैट मीन्स 3 इंटू 2 पहले करना है एंड देन 3 इंटू 4 बाद में करना है। आपको क्या करना है, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन अगेन इसी 3 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों जो ब्रैकेट में जो टर्म्स है उनके बीच में जो भी सिंबल है वो आपको यहाँ प्लेस करना है, इन दोनों टर्म्स के बीच में। यही होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप अगेन बड़े नंबर्स के लिए या किसी भी होल नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज 13 इंटू 3 प्लस 4, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 17 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा, दैट इज 17 इंटू 3। फर्स्ट यू मल्टीप्लाई 17 with 3, then you multiply this 17 with this 4, that is 17 into 4, and the symbol here is, अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल होता है तो यहाँ पे भी माइनस का सिंबल आएगा, लेकिन अभी दोनों ही एग्जाम्पल में मैंने प्लस लिया है क्योंकि अभी आपको एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ाना है, इसलिए दैट इज 3 प्लस 4 है तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाउ मेनी प्रॉपर्टी वी हैव लर्न? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, associative property, multiplicative property of 0, multiplicative property of 1, and the distributive property. That means 6 property we have completed. And in the same way, one more distributive property is 3 into, suppose here 2 minus 4. That
means distributive property for addition and the distributive property of subtraction. Suppose this is this, then 3 आपका क्या होगा, 3 into 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट, then 3 into 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, that is 3 multiplied by 4, that is 3 multiplied by 2 and the 3 multiplied by 4. Now in this case what will be the symbol here? Minus. यहाँ सिंबल माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ब्रैकेट में जो दो टर्म्स है जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगने वाली है उनके बीच में माइनस का सिंबल है, ठीक है. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. दिस इज द सम प्रॉपर्टीज ऑफ multiplication of the whole numbers. For today's lecture it is it. We will continue in the next lecture. Bye.